السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي نور قلوبنا بنور الایمان، والصلاة والسلام على حبیب الرحمن الذي زين ارواحنا باسرار کلمۃ الطیبہ ومعرفۃ القرآن، وعلى آلہ الطیبین والطاہرین والبرہان، وابنہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، وللنبی فی الدنیا ریحانتان، وعلى اصحابہ المکرمین المعظمین الفرقان، خصوصا على خلفاء الراشدین المہدیین ومعهم علينا اجمعین الى یوم الدین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ صدق اللہ المولان العظیم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقائے نامدار، شہنشاہ ذی وقار، محبوب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، یعنی ہم عاشقوں کے دل کا قرار ہے، اور قرار میں اتنی آپ کی جو ہے بے قراری نظر آ رہی ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ہم عاشقوں کے دل کا قرار، ارے چین تم سے، قرار تم سے ہے، زندگی کی بہار تم سے ہے۔ اب اگر اس میں بھی آپ کی روح کے اندر تازگی نہ آئے پھر کس میں آئے گی؟ مجھے آپ یہ بتا دیں کتنا سننے کے لیے تیار ہے تو میں اتنا ہی موضوع کو جو پھیلاؤں گا۔ گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، ہم عاشقوں کے دل کا قرار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، یعنی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بہربار میں ہدیہ درود و سلام بلند آواز سے پیش کرے اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ بہت سونے لکھا ہے، لیکن یہ وہ شعر ہے جو غریب نواز کی جانب منسوب ہے۔ سبحان اللہ۔ نہ جانے اس کو پڑھنے کے بعد کون سی انرجی کریٹ ہوتی ہے کہ وہ بڑی بڑی کتابیں، بڑی بڑی نظمیں، نہ نثر وہ کام کرتا ہے نہ نظم وہ کام کرتا ہے جو کام غریب نواز کا یہ شعر کر دیتا ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، ختم کر دیا۔ دین است حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نداد دست دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ ارے انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، یا حسین یا حسین، بولیے ذرا یا حسین یا حسین۔ جتنا آپ کے دل میں حسین ہے اتنا زبان پہ آئے تو سمجھ میں آئے، بولیے
अपने हाथों को भी गवाह बना लीजिए और कहिए कुछ नहीं समझ में आया, सिर्फ या हुसैन समझ में आ गया तो बेड़ा पार। हाँ, लेकिन हमने इतना आसान समझ लिया है हुसैन को समझना, इतना आसान समझ लिया है, इतना आसान नहीं। इंसान को बेदार तो बोले नहीं। आज तो दो कान का आदमी चलता फिरता है, हम समझते हैं कि वो इंसान है। नहीं, काश की हदीस पढ़ी होती कि इंसान अपने आमाल से इतना गिर सकता है कि वो हैवान से बदतर हो जाए, और अपनी नेकियों से ऐसा उठ सकता है कि फरिश्तों जैसी उसमें से खुशबू आए। इंसान को बेदार तो हो लेने दो। तो फिर आपको अब मसला समझ में आ गया होगा कि हुसैन हुसैन कौन कर सकता है। अगर आप हुसैन हुसैन कर रहे हैं, यानी आपके अंदर का इंसान बेदार हो रहा है। अगर आपके अंदर का इंसान बेदार हो रहा है, आपकी जुबान या हुसैन करने लग जाएगी, क्योंकि या हुसैन करने के लिए इंसान होना शर्त है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे के हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। पीछे बैनर लगा हुआ है, उसमें शेर खड़ा था, और फिर वो जो पोस्टर जो है शेयर किया जा रहा है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। सुने ये शेर आपने सुना है तो बोलो सुभान अल्लाह। करबला एक बार हुई कि कई बार हुई? फिर हर करबला के बाद क्या मतलब? जवाब तो सही है अधूरा, यानी जंग जारी है, यानी जंग जारी है। करबला में दो नजरिए थे, एक वो नजरिया जो इंसानियत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो मोहब्बत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो रहमत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो अकीमुस्सलात का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो मुस्तफा की शरीयत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो मुस्तफा की तरीकत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो मुस्तफा की हकीकत का अलमबरदार था, एक वो नजरिया जो मुस्तफा की मारिफत का अलमबरदार था, तो दूसरा जबर का अलमबरदार था, जुल्म का अलमबरदार था, शैतानियत का अलमबरदार था, जुल्म और बर्बरियत की इंतहा का अलमबरदार था। आज भी जारी है, आज भी जारी है। हर करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। आज भी, कल भी हुसैनियों ने इस्लाम के लिए अपना खून पेश किया था, और आज भी हुसैनी अपनी फरमाबरदारी से अपनी गुलामी का सबूत देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप या हुसैन करने हाजिर हुए। बोलिए या हुसैन। जितनी मोहब्बत है, मैं बार बार नहीं कहूंगा, आपकी जो मोहब्बत है, आपको अगर बहुत प्यार आता हो सरकार सैयदना अली मकाम पर, तो आप उतने मचल करके कहना। मैं बार बार नहीं कहूंगा, क्योंकि ये जबरदस्ती का सौदा नहीं है, ये इश्क की बात है। जबरदस्ती का सौदा कुछ और है, इश्क वालों का तो कुछ और ही दौर है। जबरदस्ती का सौदा नहीं। तो हम क्या करने आए हैं? आगे वाले हम लोग क्या करने आए हैं? पीछे वाले हम क्या करने आए हैं? हम क्या करने आए हैं? या हुसैन करने आए हैं। क्यों? हमारे बाप दादा भी या हुसैन किया करते थे। जिनके बाप दादा किया करते थे, जरा
इशारा दे करके कह दो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। हमारे बाप दादाओं ने या हुसैन किया है। हमारे उलमाए ज़मीन एहतराम या हुसैन हुसैन करते थे, करते हैं और सुबह क़यामत तक करते रहेंगे। हमारे उलमा या हुसैन करते हैं। हमारे हुफ़ाज़ आज़म या हाफ़िज़ हमारे हुफ़ाज़ किराम क्या करते हैं, आपने उनसे भी सुना होगा, क्या करते हैं, या हुसैन। हमारे कुर्रा को उठा के देख लो, सब क्या करते हैं, या हुसैन, क्या करते हैं, या हुसैन। हमारे मुफ्तियान किराम देखना है, देखो एक यहाँ बैठे, एक यहाँ बैठे, या हुसैन क्या करते हैं, मुहक्किकीन क्या करते हैं, या हुसैन। मुजद्दिदीन क्या करते हैं, या हुसैन। अरे कलंदर क्या करता है, या हुसैन। तमाम गौस क्या करते हैं, या हुसैन। तमाम अक़ताब क्या करते हैं, या हुसैन। तमाम अबरार क्या करते हैं, या हुसैन। आप सोच रहे हैं हम क्यों करते हैं, वो बता रहा हूं। सब करते हैं, हम नहीं करते हैं, सब करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन ये सब क्यों करते हैं। हमने सुना कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार। हमने सुना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन मेरी दुनिया में। सरकार ने फरमाया, जो हसन और हुसैन से मोहब्बत करेगा उसने मुझसे मोहब्बत की, जो इनसे बुग़्ज़ रखेगा उसने मुझसे। सुना ना, ये सब हदीसें रिवायत कौन कर रहा था, डायरेक्ट हमारे तुम्हारे अम्मी अब्बा या हमारे उलमाए किराम। ये जो रिवायत कर रहा था, ये रिवायत करने वाले कोई और नहीं, मुस्तफा जानी रहमत के गुलाम यानी तमाम सहाबाए किराम किया करते थे। यानी तमाम सहाबाए किराम या हुसैन किया करते थे। तो मोमिनीन या हुसैन उठा के देखो कुतुब अहादीस को, या हुसैन। अभी एक बात कह रहा हूँ, मुबालगा नहीं कर रहा हूँ, आप अपनी नजर दौड़ाइएगा, जो मुझे दिखा वो कह रहा हूँ। हमने देखा है, और देखा नहीं हमने तो खुद किया है, जितना एहतिमाम के साथ मैंने बाकायदा 10 रोज़ा बयानात रखते हैं, सैयदुल शुहदा सुल्तान करबला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में इराजे अकीदत जितने एहतिमाम के साथ पेश करते हैं, इतना एहतमाम तो हम मिलादी नबी में भी नहीं करते। रोजा कर लेते 12 रोजा, बहुत शादो, लेकिन 10 रोजा नहीं। ये तो बात यही है ना, मेरे सरकार ने कह दिया है कि जो हुसैन से मोहब्बत करेगा, जो हसन से मोहब्बत करेगा, वो मुझसे मोहब्बत करेगा। आपको वहां नहीं घबराना है, आपको देखना ये है कि नाना ने नवासे का जिक्र कितना बुलंद किया। यहाँ ये नहीं है कि ज्यादा हमने एहतमाम के साथ किया, बताना ये मकसूद नहीं कि सरकार के जिक्र से हुसैन का जिक्र बुलंद होता है। सानी सरकार के सदके में हुसैन का जिक्र बुलंद होता है। सरकारे तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हुसैन का जिक्र बुलंद होता है। लेकिन अब समझने की बात यार है, ये जितने एहतमाम के साथ हम जो जिक्र कर रहे हैं इमाम हुसैन का, इतने एहतमाम के साथ आपको किसी और का जिक्र मिलता है? किसी और का जिक्र इतने एहतमाम के साथ नहीं मिलता। क्यों बताएं आपको? उसी का जवाब दूंगा। इतने एहतमाम के साथ, बात आई पहले समझ में? इतने एहतमाम के साथ 10 रोजा बाकायदा आपका, और हर दफा वाकया सुना, हर दफा सुना, लेकिन कभी पुराना होता ही नहीं। कभी पुराना होता ही नहीं। हर साल सुनते हैं, आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। हर साल सुनते हैं, दिल पे अपने लगे लगता है। हर साल सुनते हैं, दिल मचलने लग जाता है। वो दास्तान है।
آخر اس میں اتنی برکتیں ہے تو ہے کیسے؟ اتنی برکتیں اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا ہے، اس میں خود اللہ کی منشا ہے۔ ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے کسی کو پیدا فرماتا ہے، اس کے آنے سے پہلے بشارت شروع ہو جاتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا مقصود ہوا، اپنا خلیفہ بنانے والا۔ قاعدہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جب کوئی آنے والا رہتا ہے ہستی، اب جس ایک عظیم مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ لینا چاہتا ہے تو اس کے آنے سے پہلے ہی اس کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب پیدا ہونے والے تھے، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت شروع اولاد ملنے آنے والی ہے۔ کیونکہ اسحاق نبی کے ظلم میں کون آنے والا ہے؟ ان کی آنکھ کی پشت میں انبیاء، بہت سارے انبیاء کرام تشریف لاتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آنے والے تھے، تشریف اس سے پہلے بشارت کیوں؟ ان کے یہاں نقطہ تو آ رہے ہیں لیکن جاؤں گا نہیں۔ تو آپ کے پشت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے، بہت بڑا کام آپ کی بشارت ہے۔ آپ یوں اٹھائیے، غوث اعظم کے آنے سے پہلے ان کے والدین کو بشارت، غریب نواز کے آنے سے پہلے ان کے والدین کو بشارت۔ اوپر دیکھیے یا نیچے دیکھیے، آپ کو قاعدہ مل جائے گا۔ حسین آنے والے تو بھی بشارت، امام حسین آنے والے تھے، بشارت شروع کیسے؟ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم کی چچی جان سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب میں دیکھا سرکار دو عالم۔ وہ کیا صحابہ کی زندگی تھی، ظاہر میں بھی سرکار کو دیکھا کرتے، خواب میں بھی سرکار کو دیکھا کرتے، اپنی جلوت میں بھی سرکار کے جلوے، خلوت میں بھی سرکار کے جلوے، بیداری میں بھی سرکار کے جلوے، اور نیند میں بھی سرکار کے جلوے۔ ارے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ خلوت میں بھی، جلوت میں بھی، نیند میں بھی، بیداری میں بھی سرکار کے جلوے۔ سیدہ ام فضل نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ کر گئے، اور یکایک آپ کی جسم پر ایک ٹکڑا پڑ جاتا ہے۔ سیدہ ام فضل، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جوزہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فضل، جیسے یہ خواب دیکھتی ہوتی ہے سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ نے جیسے یہ خواب دیکھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ، آج میں نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کے جلوہ آرا کو دیکھا۔ تو کہے پھر اس میں کیا بات ہے، پریشان ہو گئی؟ آپ کے چہرے سے یہ پریشانی کا، یہ جو پریشانی کے آثار ہیں یہ کیوں نظر آ رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ کو دیکھا لیکن جو معاملات دیکھے اس سے دل بے قرار ہو جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا جسم اطہر کاٹا گیا اور اس کا ٹکڑا میری گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ تو دیکھا تھا خواب، ابھی تک یہ خواب نے وحی کا درجہ نہیں لیا، اب یہ خواب وحی کے درجے لیا، کیونکہ اس کی تعبیر مصطفیٰ فرمانے والا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے میری چچی جان، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری بیٹی فاطمہ کے گھر ایک فرزند پیدا ہونے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ فرماتی ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں سیدنا حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، جیسا سرکار نے ارشاد فرمایا تھا۔ اور وہی حدیث آگے ہے، وہی آگے ہے کہ اللہ کے رسول
बच्चे को प्यार करते करते सैयद अम्मे फजल ने पूछा या रसूलल्लाह आप क्यों रो रहे हैं? कहा मेरे पास फरिश्ता आया, मेरे पास फरिश्ता आया था और उसने मुझे कहा कि आप इस बच्चे का गला चूम देंगे, इस बच्चे को के गले को आप ही के उम्मत के लोग, आप ही का कलमा पढ़ने वाले मैदान तख्त में शहीद। अब हुसैन गोद ही में गए, आपका चर्चा गोदगी से शुरू हो गया। लोग कहते हैं माँ की गोद से, देखो मुस्तफा की गोद से कहां से? जिसका चर्चा मुस्तफा के गोद से शुरू हो उसका चर्चा किस जमाने में रुक सकता है? कल यजीद ने कोशिश किया था, कल यजीद हुसैन का जिक्र नहीं रोक पाया और आज का यजीद भी नहीं रोक पाया। कल का यजीद और यजीदियत ना उसमें ये दम था, ना है, ना कभी होगा कि चर्चा हुसैन का रोक दे, क्योंकि ये चर्चा बढ़ाने वाला खुद खुदा और खुद आने से पहले आपको आने से पहले पता चला क्यों ये हुसैन का जिक्र बंद नहीं हो सकता। एहतराम देते, एहतराम। इमाम हुसैन पैदा हुए, हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के सैयदा के घर बच्चा पैदा हुआ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते और फरमाते कहाँ है मेरा बेटा? कहाँ गए मेरा बेटा? ला सरकार इमाम हुसैन को गोद में लेते और अपनी जुबान इमाम हुसैन की जब तक का चाहा हुसैन ने लुआबे मुस्तफा को किया, जितना चाहा, जितना चाहा। ऐसा नहीं समझ में आया? शायद समझ में आ जाए। लुआबे दाहिने मुस्तफा को आप समझ नहीं रहे, पहले समझिए। सरकार गौसे आजम ने सरकार को देखा, आलमे रोया में देखा और देख क्या देखते हैं कि सरकार ने कहा अरे अब्दुल कादिर क्यों लोगों को नसीहत नहीं करते? तो कहते हैं कहाँ ये अरब फसाहत और बलागत के माहिर और मैं कहा इनके सामने। सरकार ने आपके मुंह में 7 दफा लुआबे दहन डाला। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, शॉर्ट में बता रहा हूँ पॉइंट। सरकार ने 7 दफा लुआबे दहन डाला, उसके बाद इमाम आली मकाम में 6 दफा डाला, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? उसके बाद ये हुआ कि जब जुबान से आजम हरकत करती तो आपकी महफिल से सिर्फ दिल नहीं धड़कते, जनाजे उमड़े थे, जनाजे आपकी महफिल से। सरकार के लुआबे दहन, सरकार का लुआबे दहन, लाल सलाइवा 7 दफा टपकाए और जिसने दिल भर के पिया हो उसका नाम क्या हो? अरे जिसने 7 बूंदे लुआबे मुस्तफा की पी को वो गौसे आज़म हो जाए तो आखिरकार क्यों लगी? जिसने जुबाने मुस्तफा को जितना दिल चाहा उतना चूसा, वो क्यों लगी? शहीद आज़म, सुल्तान आज़म, शहदाए आज़म, तमाम शहीदों का सरदार बन जाए।
कहा ना, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई, ये घटाए, हाँ ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना देगा, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना देगा। अक्ल होती थी, इतना नहीं समझ में आया कि जिसका जिक्र गोद से शुरू हो गया और आखिर तक जिक्र ही जिक्र हो रहा है, तो उसका अर्थ क्या होगा? आ रहे सरकार ने हुसैन को गोद में लिया और लुआबे दहन पे था, लुआबे दहन। मैंने एक हिकायत है तज़किरत-उल-औलिया में, अब मैं उसे खाब का आलम कहता हूँ, क्योंकि हजरत ख्वाजा हसन बसरी की पैदाइश की तहकीक कुछ और है, लेकिन ये वाकया है। कहते हैं सैयदा माँ उम्मे सलमा आपकी वाली थी सैयदा ख्वाजा हसन बसरी की, तो कहते उनके पास सरकार का प्याला था, उस प्याले से ख्वाजा हसन बसरी ने पी लिया। अब पीने के बाद का जो वाकया है कि सरकार ने पूछा कि इससे किसने किया। मैं सिर्फ इतने जुमले को कह रहा हूँ कि ये जो मुहक्किकीन है वो समझ जाएंगे। हो सकता है कोई एक मुलाकात हो गया, एक पहले जमाना का पेंटिंग मिस्टेक हो सकती है। कहा ये प्याले से किसने किया? कहा हसन ने किया, ख्वाजा हसन बसरी, हसन बसरी। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, मैं कह रहा हूँ आलम खाम, किताब में नहीं लिखा, मैं तहकीक के लिए कह रहा हूँ, आलम ये मैं कह रहा हूँ। आप जो ये फरीदुद्दीन अत्तार बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, मैं उनकी नहीं कह रहा, हो सकता प्रिंटिंग में कोई अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना देगा। आगे आप लोग यहाँ आ गए होंगे, देखो आगे कर आ गया है। हाँ अच्छा तो यहाँ से चला गया, ज्यादा नजदीक आ गया तो सुनने से गुरुदेव सैयदना मौलाना मुहम्मद व अला रसूलिना मुबारक वसल्लम सलाम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और की जगह पे भद्रा मछली है, फिर वहाँ मौतें तारी होती है। ये ऐसी महफिल नहीं है, ये ऐसी महफिल नहीं है। हिफाजत करने वाला जिनकी महफिल है वो खुद है, जिनकी निकाह हो बराबर रास्ता दिखे आमीन में मदद नहीं हो जाएगा। दुर्दे पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने पूछा इस प्याले से किसने पिया? सैयदा उम्मे सलमा ने इरशाद फरमाया, मां उम्मे सलमा ने कि इससे हसन ने। सरकार ने इरशाद फरमाया इसमें से जितना पानी उसने पिया उसे खिलाने, जितना पानी पिया उतना इल्म। और आप जानते कौन है ख्वाजा हसन बसरी? मालूम है? हाँ उठाइए जाकर देखिए, सैयदुल ताबईन है, जिन्होंने 80-90 सहाबाए कराम से, जिसमें से 60 बदरी सहाबा से मुलाकात। सैयदना ख्वाजा हसन बसरी, आप कहते हैं ना चिश्ती है, चिश्ती है। कौन कौन चिश्ती है? जरा हाथ ला के बोलो सुभान अल्लाह। सब चिश्ती है। चिश्ती सिलसिला मौलाए कायनात से ख्वाजा हसन बसरी, और ख्वाजा हसन बसरी से होते हुए, चिश्त से होते हुए, अजमेर से होते हुए आशिकों तक पहुंचा। ख्वाजा हसन बसरी आपके इल्म का ढांचा पूरे दुनिया में बचता है। जो नहीं मानने वाला है उसे भी उनको मानना पड़ता है। जो तमाम सूफियों का इनकार करता है, इस सूफी का इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस सूफी का इनकार करेगा तो पूरी हदीस की दुनिया छोड़ देगा। ख्वाजा हसन बसरी का इनकार कर दे, इस
इस वली का, इस सुन्नी का, इस इनकार कर दे, सब उल्टा उल्टा होने लगता है। वो इल्म का पहाड़ तू कह रहा हो कि सैयदना ख्वाजा हसन बसरी ने सरकार के प्यारे से पिया, जितना इल्म था, जितना पिया उतना इल्म नहीं। वो प्याला क्यों बता है? वो प्याला था, प्याले को नबी मुस्तफा लगे, कुछ लोग आगे दहन लगे, प्याले को लबे मुस्तफा लगे और हट गए, लगे और हट गए, लगे और हट गए। हटने के कई साल बाद जब ये इससे पानी पिए उतना इल्म मिल गया, उतना इल्म मिल गया। या हुसैन आपने प्याले को नहीं डायरेक्ट नबी मुस्तफा को चुना, प्याले को नहीं डायरेक्ट नबी मुस्तफा को चुमाए। कसम खुदा की, अगर प्याले से पीने वाला इल्म का बहार है तो या हुसैन आप इल्म का आसमान है, आप इल्म का आसमान है। यही तो वो बात है कि तमाम का जिक्र एक तरफ और हुसैन का जिक्र एक। तमाम के तमाम एक तरफ, हुसैन इसी वकार एक तरफ। उलमाए कराम यहाँ मौजूद है, मेरी बात से वो भी इत्तेफाक करेंगे। इस रुए जमीन पर सबसे बेहतरीन पानी अगर कोई है तो वो समझम का पानी। क्या फरमाते हो? सबसे फजीलत वाला पानी, बेहतरीन वाला, बेहतरीन पानी, दर्जा रखने वाला पानी ज़मज़म का पानी। ज़मज़म के पानी से बेहतर जन्नत का पानी, कौसर, तस्नीम, ज़मज़म से बेहतर कौसर का पानी। ठीक है, उलमा फरमाते हैं, मुहक्किकीन इरशाद फरमाते हैं कि उस जन्नत के पानी से भी बेहतर वो पानी है जो हुजूर की उंगलियों से जाता है, जो हुजूर के। यहाँ तक हमारे बड़ों ने कहा है, इसके आगे मेरी मोहब्बत कहती है आपको अगर पसंद हो तो बोल कर लेना, ना पसंद हो तो कोई बात नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। मेरा यह मानना है जो उंगली से पानी निकला यकीनन उसका हम पल्ला कोई पानी नहीं, लेकिन उस पानी से भी हुजूर का लुआब इस कायनात में ऐसी कोई ग़िज़ा लगी है जो मुस्तफा के नाम से निकले हुए लुआब की तरह है। क्या हुसैन आपकी ग़िज़ा, आपका खाना, आपका पीना, आपकी प्यास बुझाने का जरिया, आपके भूख बुझाने का जरिया ऐसी वैसी चीज नहीं, मुस्तफा के दान का लुआब है, लुआब जो तमाम ग़िज़ाओं से बढ़कर ग़िज़ा, तमाम रूहानियत से बड़ी रूहानियत, तमाम दर्जों से बड़ा दर्जा दिलाने वाली वो ग़ैबी शय है जो एक पल में अदना को जो सुरैया पे पहुंचाती है। या हुसैन आपकी ग़िज़ा, बोलते ना आदमी जैसा खाता है वैसा उसकी हरकत में, जायज का माल खाए तो उसकी हरकत की जायज़वानी होती है, और जायज नाजायज हराम और हलाल में इम्तियाज करना बंद कर देना, फिर वो किसका एहतराम करना है, किसकी गुस्ताखी करनी है, उसका इम्तियाज उससे खत्म हो जाता है। ये कोई हवे में बात नहीं कह रहा। आप हलाल का लुत्फ़ खाए, सजदा अदा करो और आपकी सजदे की लज्जत देखो। आप हराम का खाओ, मैं लिख के देता हूँ, मस्जिद का दरवाजा भी नहीं पसंद आएगा। अब उन लोगों को नवाया दिया गया है जिनको अपने परवरदिगार की बारगाह में हाजिर हो
ہونے کا شوق نہیں ہے، جو اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں رکوع میں نماز میں اقیم الصلاۃ میں جانا پسند نہیں کرتا، وہ اپنی خوراک میں دھیان دے کہ حلال کھا رہا ہے نہ رہا۔ آپ کو اگر رب کی عبادت، رب کا ذکر، رب سے محبت، مسجد سے قربت، علماء سے قربت، صلاح سے قربت اگر پسند نہیں ہے تو غور کیجئے کہیں کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو گیا ہے۔